first thing is कि हमें खुद के ऊपर भी काम करना है so that we are in a space that we are able to listen without judgment. And I feel like that it is difficult for everyone to get off social media because starting से हमारी ये conditioning हो गई है कि we feel absolutely attached to our phones. I don't need superficial things to feel good about myself, okay? But अगर यही चीज हम health के ऊपर apply करें तो that the meaning will change drastically. You can never knock me. Welcome, Richa. Welcome to the Justin Talks podcast, and I'm really excited to have you because, to be honest, for the first time, I'm talking to a psychologist and a mental health coach. So I'm really excited to talk to you, and I've seen your page. आपका content बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. I was going through it. It's very useful, and I feel people should hear more about this. अभी हम दोनों almost पंजाबी culture से काफी ज़्यादा मतलब हैं related हैं. So we can understand यहाँ पे थेरेपी जैसा वर्ड ही नहीं पता लोगों को. उतनी अभी अवेयरनेस नहीं है, बट आई स्टिल फील कि इसकी नीड बहुत ज्यादा है. एंड पीपल थिंक वी हैव टू गो टू थेरेपिस्ट व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हेन देयर इज दिस इमरजेंसी या कुछ ऐसे, या लोगों को कुछ को लगता है कि यार किसी को मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है तभी जाएंगे. बट आई हैव अंडरस्टूड इन पास्ट 1-2-3 years की थेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, so really excited to have you. Welcome on Justin Talks. Thank you so much for having me. I'm just so excited, and it feels so good that my account is reaching people like you because you know that I have been struggling with it, and it's very difficult to put ourselves out there. But I'm so glad that we finally met and you invited me. That really means a lot to me. Arey nahi, you deserve it. You totally deserve it. Okay, so my first question is simply very basic. Okay, so I want our audience to understand what you basically do and what motivated you to become mental health specialist. Okay. So, hi everyone. My name is Richa, and I like to inspire people, just like Justin likes to inspire people. I never, heard the word psychology before. When I was like 13 years old, I actually watched this movie called The Secret, and उसमें मैंने देखा, कि law of attraction भी कोई चीज, and वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की. मैं पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख रही है. आई वाज सो इंट्रीग्ड दैट वी कैन कंट्रोल आवर थॉट्स. जो हमें थॉट्स आ रहे हैं, क्या हम उसको एक्चुअली चेंज कर सकते हैं. दैट वाज सो न्यू टू मी, एंड आई फेल्ट लाइक that why do people do not know about it. लोगों को बहुत ज्यादा कम अवेयरनेस है कि एक्चुअल में थॉट्स जो भी आते हैं, दे जस्ट लेट इट इन, चाहे वो उनकी लाइफ को खराब ही क्यों ना कर रहे हो. एंड दैट इज हाउ आई केम टू नो दैट हम साइकोलॉजी में जा सकते हैं, एंड फ्रॉम देयर आई कैन बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर और गोइंग टू healing people's lives and all of that. And that is how I researched more about how to become a psychologist, and then I enrolled into the program, and through that I thought that I can inspire people. That was the main motto, and from that I realized that people do not want to grow. Like they want all the good things in their life, but वो खुद जो effort डालना होता है ना, उनको पता ही नहीं होता कि वो कैसे डालना है. That they don't want to change basically, right? Yeah. मतलब they want to keep these self-destructive habits. At the same time, they want to achieve their goals. Exactly. Because I also see this. People will come, how can I lose weight without leaving my Pronda pizzas? I'm like, dude, those are the things which made you obese. उन्हीं की वजह से आपका वेट बढ़ा है, तो आप उनको रख के अपनी डाइट में कैसे वजन कम कर सकते हो. ओके, सो या कंटिन्यू. अवेयरनेस नहीं है ना उनको. They don't know themselves that much. They are in a superficial relationship with their own selves. They feel like that someday something will happen or God will do something that will help them, but they do not want to put their own effort into it, and that is why they cannot grow. Yeah, I loved the word superficial with self-love. The self-hold. I completely get this. I see this all the time. Okay, we are into this modern world where we are connected by seconds through social media. And I feel that social media most of the social media is manipulative. People show what they want to show, not what they are actually. And वो बहुत ज़्यादा difference है, like who you are and what you show. तो वो difference की वजह से
I think FOMO बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. Do you agree with that? And Yeah, absolutely. and what do you think that FOMO, fear of missing out, is affecting their mental health? Like how it is affecting their mental health, and how do you deal with FOMO? Because कभी ना Okay. कभी हम सबको hit होता है, मेरे को भी हो Yeah. जाता है, even if I'm aware. Okay, so how do you handle with that fear of missing out? आई थिंक दैट फोमो के दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो हम क्रिएटर्स के लिए है दैट वी फील लाइक दैट इफ वी आर नॉट पुटिंग आवरसेल्व्स आउट देयर तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, या कंपटीशन है इतना ज्यादा, या फिर रीच कम हो जाएगी एंड ऑल ऑफ मतलब दैट. ट्रेंडिंग रील पे नई वीडियो बनाई तो कैसे चलेगा? एग्जैक्टली कंसिस्टेंट नहीं रहे तो फिर वही प्रॉब्लम, पीपल विल नॉट लाइक सी अस और व्हाटएवर. एंड दूसरी एस्पेक्ट में ये है फोमो कि यू आर मिसिंग आउट ऑन न्यूज एंड मोर important details, and that is why the audience doesn't want to get off social media. And I feel like that it is difficult for everyone to get off social media because starting से हमारी conditioning हो गई है कि we feel absolutely attached to our phones, okay? And social media के साथ like जब भी हम young थे तभी से हम Facebook पे आ गए, है ना, then Instagram पे आ गए. ये new social media aspects जो थे वो तब हमारे पास थे when other people were not there for us, when our friends were not there for us, or whenever we had some fights with our family, then we used social media to get an escape. And that escape actually helped us to deal with a little bit of stress in our lives. Whenever we are in our adolescent period of time, हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ जिनके साथ हम अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं. तो सोशल मीडिया एक आउटलेट था जहां पर सब लोग अपनी लाइफ को प्रेजेंट करते होते थे, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते होते थे. बट नाउ इतना ज्यादा सैचुरेशन हो गया, इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टोरीज दिखती हैं, सब लोग अपना लाइफस्टाइल इतना ज्यादा दिखाते हैं दैट पीपल फील लाइक कि अगर उन्होंने वो स्टोरी नहीं डाली या फिर वो थोड़ी टाइम के लिए सोशल मीडिया से गायब हो गए तो उनको दुनिया का पता ही नहीं लगेगा. इट्स जस्ट लाइक नॉइजी आंटीज ना, उनको हर मोहल्ले के बारे में पता होना चाहिए. वैसे ही धीरे धीरे हमारा माइंड भी ऐसे ही बनता जा रहा है कि हमें हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, और मे बी मैं पीछे रह जाऊंगा लाइफ से, मैं आई वोंट बी एबल टू कीप अप विद द वर्ल्ड. एंड दैट इज व्हाई फोमो इज एक्चुअली अफेक्टिंग एवरीवन's mental health, because you're 24 hours on social media and you scroll through everyone's lives and you see so much of hate and so much of negativity in the world. कभी ना कभी कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है, कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, एंड वो चीजें आपके माइंड में रह जाती है बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन टू फील गुड अबाउट इट लेटर ऑन. यू टेंड टू देन शेयर दैट विद अदर्स ऑल्सो. आई फील लाइक इवन मेरे फ्रेंड्स भी ऐसा कभी कभी करते हैं, उनको कोई नेगेटिव न्यूज दिखेगी वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, देन वी स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट, एंड देन दैट स्पाइरल कम्स एंड यू फील लाइक दैट यू आर जस्ट गेटिंग स्टक इन दैट स्पाइरल, एंड देन उसके बाद उस चीज से मूव ऑन होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एंड आप सोचो कि सोशल मीडिया पे इतनी सारी न्यूज होती है, एंड अगर आपको हर चीज इंफॉर्मेशन आप अपने दिल पे लगा लोगे, हाउ वुड यू मूव ऑन, हाउ वुड यू इवन फोकस ऑन योर ओन लाइफ? एंड वी फील हेल्पलेस, वी बेसिकली फील हेल्पलेस के किसी देश में, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान थिंग हैपेंड, ओके, पीपल आर अफेक्टेड बाय इट, लाइक इवन अबाउट थिंकिंग अबाउट इट, at the end of the day we are helpless, we cannot do anything. Absolutely. And that helpless feelings makes us more depressed कि यार it's like tied with a chair and जैसे होता है ना कि नाक पे खुजली हो रही है, you cannot just, you can't do that. तो वो helpless feeling बहुत ज्यादा हो गई है because people don't understand the difference between healthy stress and unhealthy stress. Healthy stress is things you can control, जो उस चीजों का stress, और unhealthy is things you cannot control. और जब हम अनहेल्दी स्ट्रेस लेते हैं, जो हेल्दी स्ट्रेस होता है उस पे, मतलब जो चीजें हमें एक्चुअल में अपनी लाइफ की ठीक करनी चाहिए हम वो नहीं करते, तो वो भी बढ़ जाता है. You get this? So I think that is very crucial for people to understand कि जो फोमो आपको फील हो रहा है इट्स सुपरफिशियल. मतलब हो गया ना कि अभी वेकेशन पे अगर तुम गए हो, तुमने फोटो नहीं डाली तो वो वेकेशन कंसीडर ही नहीं होगी, है ना? एंड everyone who's not uploading pictures, who's not active enough on social media is considered old school right now. यार तुम ये भी नहीं करते यार, what is this, है ना? So and अभी after the especially reels and TikTok, and I think everybody is a creator, and वो I think it's sad also, it's good also because अच्छे लोगों को opportunity मिल रही है. Sad because somebody's reel went viral. It was blessing of algorithm. It doesn't mean that you are good content creator. Exactly.
if I win a lottery, I'm not a good businessman. I just happen to have a money with by luck. Yeah, ठीक yeah. है? And वो चीज समझनी जरूरी है because वो एक तो I hate viral stuff. Okay, I never want to go viral. Some of my reels went viral, but I was not happy about it because viral जाने से एक अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है एंड यू देख के नहीं ये वाली क्यों नहीं अब इतनी रीच हो रही, ये वाली इतनी क्यों नहीं रीच हो रही, बिकॉज आई वाज आल्सो इनटू दैट व्हेन माय फर्स्ट ऑफ माय रील वेंट वायरल. उसके बाद जो दूसरी 2-3 रील्स थी उनकी रीच उतनी नहीं, मैंने आई वाज इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ डाउट कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ मिस आउट हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है. एंड देन वी टेंड टू रिपीट दैट स्टफ, वी टेंड टू रिपीट कि चलो ट्रेंडिंग रील बनाते हैं, शायद उससे रीच बढ़ जाए, शायद लोग शेयर करें. तो वो आई थिंक दैट बिकम्स वेरी टॉक्सिक फॉर कंटेंट क्रिएटर्स आल्सो, एंड मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया. सो या पीपल हैव टू अंडरस्टैंड. Wahi, like people are mainly focusing on what people like to watch, and that is really unhealthy because you're creating for like what people want to watch, and most of the people would like to watch ऐसे time pass wala stuff, and so you're not creating meaning in their lives. You're just creating something that people like. Yeah, basically, so creators should create what they want to show, not what people want to hear. Exactly. Yeah, that can make a lot of difference. Okay, so next question is like, what is actually self love? I want to hear this from like mental health coach. Self love की definition सबकी अलग है, and I see some of the toxic definitions, for example, जो मेरे हिसाब से toxic है. I can be wrong. Yeah, like people are obsessed with how does their nose look, ठीक है, ear shape कैसी है, या why don't I have that kind of jawline. Okay. Other kind of toxic self-love I see, I'll be very honest, that body positivity movement which is going on the social media, and that is like over accepting yourself, over appreciating yourself, and it's like कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम को मैं प्रॉब्लम ही कंसीडर नहीं करूंगा, मैं उसको ठीक कैसे कर सकता हूँ. If I stand in front of mirror, I say I'm perfect. Okay, God has created me, I'm perfect. जो भी मेरे को बोलेगा वो it creates a situation you versus me. You must, मतलब या तो you are with me or you are against me. Yeah. और वो I think both of those definitions are very toxic. What is that subtle self-love we need to have? Okay, so the thing is that self-love is not just about acceptance. It's also about valuing yourself that much that you choose to grow. Okay, it's a balance. Ki I know that there are people who struggle with their insecurities. Okay, for example, if someone doesn't like their nose, they might be considering a surgery. But instead of considering surgery, at that moment of time, you need acceptance. Okay, you need to give love to other parts of your body, that what, I don't need superficial things to feel good about myself. Okay, but अगर यही चीज हम health के ऊपर apply करें तो that the meaning will change drastically. It's not like that. In आपको अंदर से feel हो रहा है that you don't like being unhealthy. उस आपका fat जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है because you are consuming a lot of junk food, and that is causing some bad consequences. ठीक है, bad nose का कोई consequence नहीं है. Okay, it is the structure. Okay, but अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसका negative consequence है, तो उस टाइम पर if you're just accepting yourself the way you are, then that is not self love. That is being in denial. Exactly, that's ignorance. Yeah, so self love would be that you accept your body the way you are. You're not hating on yourself, but you're also working on yourself so that you're continuously growing to become a better version of yourself. That is what a self love is. Exactly, I agreed with so much. I simply tell people that self-love is made for me. It's that accepting that you are enough and also striving for the growth at the same time. Exactly. Okay, you don't have to consider yourself perfect. Perfection doesn't exist. Perfection means with the thing which cannot be improved after this stage. That's perfection. And I think perfection hypothetical. It doesn't exist. It doesn't exist in anything. Okay, whatever the world view you have in your mind, आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी, लोग वीगन हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो उससे सारी दुनिया ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा. And nothing is perfect. Okay, good and bad दोनों exist करेंगे ही करेंगे. Because वो good की importance इसलिए है क्योंकि bad है. Otherwise it does not have any definition. Not the definition of goodness is like where badness doesn't exist. That's the definition.
दे आर इंटर रिलेटेड। एंड वो गुडनेस की इंपॉर्टेंस ही तब, अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, लोग घर पे बैठे, पहले पता क्या होता था, पहले कोई फंक्शन होता था ना, फैमिली फंक्शन, मेरा दिल नहीं करता था जाने का कि छोड़ो परे क्या जाना है ये वो, ठीक है। बट Yeah. जब जब भगवान ने घर पे बिठा दिया ना कि अब तुम किसी से मिल नहीं सकते, अब कोई फैमिली फंक्शन आता है, इंपॉर्टेंस फील होती है कि नहीं यार जाना है, Exactly. मिलना है, थोड़ा सोशलाइज करना है। तो वो जो Hmm. आई थिंक जो चैलेंजेस आते हैं, दोज कम टू मेक अस रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुडनेस एंड जो अच्छी चीजें हैं हमारी लाइफ में। एंड या सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I've understood this and मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का रिलेशन बहुत बड़ा है, which Absolutely. people don't consider it at all, वो कंसिडर ही नहीं करते हैं, ठीक है। और मतलब आपकी अगर एक भी चीज अफेक्टेड है, वो दूसरी पे ह्यूज इफेक्ट डालेगी ही डालेगी, ओके। Yeah. एंड व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू, लाइक किस तरह का रिलेशनशिप हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ का होता है, एंड अगर हमारी एक भी चीज बिगड़े तो उस पर क्या दूसरी पे इफेक्ट होगा? ओके। पहली बात तो यही है कि जशन, जैसे आपने बोला कि हाँ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ जो है वो कनेक्टेड है, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट बिलीव इन इट, यू नो। कभी कभी क्या होता है, यू नो, फॉर एग्जांपल आई वुड गिव द एग्जांपल ऑफ अ स्टडी, ठीक है। एक स्टडी हुई थी, वहां क्या था कि जो एक पर्सन था, उनको ना उनके जो हार्ट की जो आर्टरीज वगैरह थी वो बहुत ही ज्यादा नैरो हुई हुई थी, दैट इज बिकॉज कि उनके ना ब्लड पहुंच नहीं रहा था हार्ट तक, ओके। सो व्हाट हैपेंड वाज कि उनको ना एक विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाई, ओके। उनको सिखाया दैट इमेजिन करो आंखें बंद करके एवरी डे दैट आपके आर्टरीज में से ब्लड फ्लो हो रहा है, okay, and they tried to do it again and again. They were imagining that हो रहा है blood flow, and what happened was कि उनकी जो arteries थी वो actual में widen up हो गई and they went well, ठीक है, वो हो गई ठीक, okay. And that I have experienced that in my real life also, that you know I was suffering from abdominal tuberculosis when I was in my 7th standard, and that was like very severe, and मुझे बाद में पता चला था that it could be कैंसर बाद में बन सकता था अगर मैं जल्दी ठीक नहीं होती। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज रियली यंग, बट उस टाइम पे आई वाज सो ग्रेटफुल दैट आई हैड वॉच्ड दैट मूवी सीक्रेट एंड आई अप्लाइड दोज प्रिंसिपल्स जब भी मैं हॉस्पिटल में होती थी, इवन व्हेन आई हैड टू लाइक go for the test and everything. I used to repeat it to myself that thank you God मैं ठीक हो गई हूँ, thank you God I am well, thank you God I am ठीक, ठीक है। तो वो जो चीजें थी उसने इतना बड़ा इफेक्ट डाला that I got well, you know, it was like impossible to get well, but I believed in the miracle. So whenever we believe that, whenever we focus on training our mind to behave a certain way, it affects our body. And we have noticed that, you know, whenever we feel negative thoughts, हमारी body भी उसी तरह behave करने लग जाती है। We feel sluggish, we feel lazy, we don't want to get out of the bed, ठीक है। And जब भी हम decide करते हैं कि नहीं, I need to go to the gym, I need to work out because that matters to me, I want to feel good and I'll feel good, जब हम अपने माइंड को सिग्नल देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है, एंड आफ्टर वर्किंग आउट वी फील सो गुड दैट यस आई केम टू द जिम, आई फील सो बेटर, राइट। सो वी कैन, like there is a relationship between mind and body that actually clearly shows that जब हमारी फैमिली मेंबर्स के अंदर ये मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट दे डू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई टेंशन आती है तो कैसा फील होता है बॉडी में, उस चीज का रिएक्शन कैसा होता है। व्हेनेवर वी फील स्ट्रेस्ड, हमारे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं एक्सेस में। जस्ट इमेजिन कि उस स्ट्रेस जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे माइंड में नहीं है, वो हमारे बॉडी में कितने सारे चेंजेस लेके आएगा अगर वो केमिकल्स एक्सेस में रिलीज होंगे, राइट। एग्जैक्टली, तो वो कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज होता है, कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज होता है, एंड दैट इज व्हाई हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती होती है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सो दैट इज व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप दोनों के ऊपर वर्क करो, सो दैट इट हेल्प्स यू टू गेन क्लैरिटी कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस, देन ही नीड्स टू आल्सो टेक केयर ऑफ हिज डाइट, एंड अगर एक पर्सन को फिजिकल इलनेस है तो ही आल्सो नीड्स टू पुट एन एफर्ट फॉर हिज माइंड एज वेल। एग्जैक्टली। एंड वो चीज मैंने भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया। आई स्टिल टॉक टू माय क्लाइंट्स एंड आई टेल देम कि देखो, जो भी आपका फिटनेस गोल है, 80% इज योर माइंडसेट, और वो 80% माइंडसेट से आपके 20% एक्शंस निकलेंगे। So how you see your fitness goal and how you think about yourself is going to reflect on your body a lot, और वो दिखेगा। And
मैं मतलब हम समझाने की कोशिश करते हैं, हाँ, पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड धीरे धीरे उनको वो रिलेशनशिप समझ आने लग जाता है। एंड आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ का भी और मेंटल हेल्थ का भी। Yeah. सो या, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक पीपल अगेन कमिंग बैक टू आवर डिवाइसेस, सोशल मीडिया हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। एंड अगर हम सोशल मीडिया की फोटोज पे जाएं, ठीक है, एवरीवन इज हैप्पी, बट वी Yeah. ऑल्सो नो कि डिप्रेशन रेट्स आर हाईएस्ट, एंड वन ऑफ द कॉज ऑफ दैट इज people are unable to build strong relationships. Yeah. Okay, मतलब आसपास के लोगों के साथ ही हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, we are vibing with person who is living like 7,000 miles away. Yeah. तो आसपास वाले लोगों के साथ एक्चुअल में रिलेशनशिप बिगड़ चुका है, बिकॉज ऑन मैसेज everybody is different, everybody मतलब you're just emoji can tell your mood, even if you're crying, Yeah. you just send a laughing emoji and they'll think you're laughing. Yeah. But जब when we talk, when we talk to each other, when we are in front of each other, there's another different story. So Yeah. how can a person build that strong relationship with people around, first of all? ये अपना पहले इनर सर्कल कैसे फिक्स करें, हम रिलेशनशिप को एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें? उस चीज के लिए पहली बात तो यही है कि फोन से निकलना बहुत जरूरी है। you know? तो लोग क्या करते हैं, whenever they go out, वो ज्यादातर जब भी वो अकेले होते हैं, they don't want to talk to the other person or notice what is around them. They only see their Yeah, I also do that. कि embarrassment या awkwardness को फोन निकाला, फोन चलाने वो लगते हैं। awkwardness बच जाती है, इतना एटीट्यूड आ जाता है, I'm being confident when I'm looking at my phone. But वो चीज फिर क्या होती है, उससे रिलेशनशिप से नहीं बनते हैं। Whenever you're like कोई भी फीलिंग हो, तब भी हम ज्यादातर अपने फोन को चूज करते हैं। हमारे को फोन के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थोड़ा कम करना होगा, तभी हम लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना पाएंगे। सो वी नीड टू इंटरैक्ट विद पीपल इन ऑर्डर टू लाइक कल्टिवेट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। इफ यू वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद समवन, देन यू विल हैव टू गिव देम टाइम। ठीक है, वही बात हो गई ना कि जब दो कपल्स हैं, अगर वो अपने आप से बात करने की जगह एक दूसरे के फोन्स में देखेंगे, तो ऑफ कोर्स वो रिलेशनशिप की जो डीपनेस है वो नहीं आएगी, डेप्थ नहीं आएगी। सो दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उसको अटेंटिवली सुने, उनसे अच्छे से इंटरैक्ट करें, उनके साथ डीपली कन्वर्स करें, रादर देन टॉकिंग अबाउट सुपरफिशियल थिंग्स, जैसे कि आज क्या किया, ठीक है, तुम्हारे गॉसिप सुनो, ठीक है, किसी की बिचिंग करो। ऑल ऑफ दैट विल एक्चुअली क्रिएट मोर नेगेटिव एनर्जी। व्हेन यू टॉक टू ईच अदर अबाउट ईच अदर, दैट क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। बट वो कैसे होगा if I think that person I'm talking to does not have that kind of depth in conversation? Are you getting my point? Yeah. तुम्हें लग रहा है कि यार शायद उसने पता नहीं है कभी ऐसी किसी के साथ कॉन्वर्सेशन की भी है कि नहीं की है, या उसकी कॉन्वर्सेशन में वो डेप्थ हो सकती है कि नहीं। सो यू समटाइम्स, आई समटाइम्स जस्ट ट्रेन, ठीक है, कि यार शायद अगर मैं इससे इस बारे में बात करूंगा, ठीक है, ही और शी माइट गेट बोर्ड or they'll not understand the depth of what I'm talking about. Yeah. So how to understand कि वो उस सिचुएशन में क्या करें, फिर वही बातें आती है कि क्या किया अच्छा, क्या, या we send memes to each other, तो वो डेप्थ कैसे फिर आएगी? So first of all, we need to understand कि दूसरा person हमारे साथ open up कितना हुआ है. Sometimes what happens is we are ready to give our all to the other person, but the other person is not at that stage. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज थोड़ा clear out करना important है दूसरे person के साथ कि if that person is ready to talk about some things, okay, if he is interested. Likes and dislikes से ही बात start होती है, that what do you like to do and all of that, and धीरे धीरे when you'll notice that a person is opening up, then you'll come to know कि उसके क्या इंटरेस्ट है, डीप इंटरेस्ट क्या है, उसके डिजायर्स क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है। ऊपर से सब लोग बहुत ही ज्यादा एक लेयर होती है हर एक पर्सन की, जो कि सिर्फ एक प्रेजेंट अपने आप को करने के लिए होती है, बट धीरे धीरे when we come to know the person, then only we can understand them deeply, right? We cannot create social deeper relationships in just one day or 2 days. We need to spend a lot of time with the person. It's like peeling an onion. Eventually you're gonna cry. Yeah. So yeah. तो yeah, this makes sense, yeah. Okay. तो मतलब इसमें मैंने एक और चीज देखी है, especially when it comes to romantic relationships. I experienced it very soon. Okay.
and I think we talked about it also. And so इसमें what I discovered is, and what I learned something very new is, and I'm sad कि मुझे इतना लेट पता लगा. It was how to build healthy boundaries. Yeah. क्योंकि healthy boundaries is something very difficult to build. और healthy boundaries build करने में क्या होता है, लोगों को लगता है कि बाउंड्री बिल्ड करना मतलब is that you don't love other person. People in fact break their boundaries to tell कि I love you. Are you getting me? कि देखो मैं वैसे तो मैं रात को 10 बजे सो जाता हूँ, ठीक है, it is my boundary, but I'll talk to you till 12 because I love you. Okay, and when you don't respect your boundary, other person also doesn't respect your boundaries, and they tend to break it again and again and again and again, or you come into this very toxic cycle where your boundaries are broken again and again, and you end up hurting your self respect. और वो आपके ओवरऑल सेल्फ लव पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, एंड वो बाकी सारी चीजें भी मिसअप कर देता है, रिलेशनशिप को भी कर देता है. तो हाउ टू बिल्ड दैट बाउंड्रीज without offending other person or your partner? See, the first thing is कि जो आप बाउंड्रीज बनाते हो, if that is offending another person, that is not your problem. Okay, that is that person's problem, because उसने अपने माइंड के अराउंड एक वॉल बनाई हुई है जिसके थ्रू वो आपके पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं पा रहा है. ओके, सो जो पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा केयर करेगा, हु विल रिस्पेक्ट यू, दैट पर्सन विल रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज. ओके, एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का, दैट यू नो, फॉर एग्जांपल इफ यू टेल दैट पर्सन योर स्केड्यूल, ठीक है, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ दैट पर्सन इज नॉट रिस्पेक्टिंग यू. Okay, because you need to respect a person's space, and if that person is not doing it, then that person is at fault. But boundaries अपने लिए create करना is important, because that will help us to align with people जो हमारे जैसे, you know, who also have healthy boundaries. अगर आप एक person के साथ relationship में हो जो खुद ही toxic है, तो आपको भी टॉक्सिक कर सकता है वो पर्सन. इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कर सकता नहीं, कर देगा, 100% कर देगा, ऑब्वियसली. या, सो इफ अ पर्सन वांट्स टू, यू नो, बी इन अ रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन, तो जितना वो अपने साथ, यू नो, रिलेशनशिप में है, उतना ही दूसरा पर्सन जो है उसको भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक अगर एक पर्सन है जो बिल्कुल ही लेजी है, वो अपने ऊपर काम ही नहीं करना चाहता, वो बाउंड्रीज रखता ही नहीं है, ठीक है, बट you are the person who is working, of course that is going to affect you as well, because एक पर्सन जो होता है जब वो किसी से प्यार करता है या किसी को, you know, अपना सब कुछ मानता है, तो उसको हर्ट होता है when the other person is not growing or he is not doing or not changing himself. Okay, so एक deep connection बनाने के लिए it's important कि दोनों पर्सन एक लेवल पे हो. Sometimes we have to wait for the other person to come at our level, but हम ज्यादा वेट भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स हमें देखना है कि हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने तो नहीं लग गई है उस चीज से. Okay, most of the people don't even know the meaning of boundaries. So let me just elaborate for that. Guys, whenever you feel like कि आपको रिलेशनशिप में आकर ज्यादा बुरा लग रहा है, ठीक है, बिकॉज आप अपना, यू नो, टाइम निकाल रहे हो बहुत ज्यादा, आपके जो मेन चीज है, आपकी ग्रोथ रुक रही है बिकॉज यू आर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू द अदर पर्सन, ठीक है, तो उस वजह से आपकी जब ग्रोथ रुकती है, आप जब लो फील करते हो, इवन आफ्टर गिविंग, फॉर एग्जाम्पल जशन गिव द एग्जाम्पल कि आप 10 बजे सोने वाले पर्सन हो, बट आप उसके लिए 12, 1, 2 बजे तक जाग रहे हो, ठीक है, अपनी नींद खराब कर रहे हो, एंड देन आपका पूरा स्केड्यूल खराब हो जाता है, एंड यू आर नॉट ग्रोइंग इन योर लाइफ, देन यू रियली नीड टू ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, कि वो पर्सन आपकी लाइफ में इतना इंटरफेयर ना करे. यू हैव टू से नो, you have to communicate your feelings that listen, my schedule gets really ramped up because of all of that, and I really don't want to miss out on, you know, going to gym or, you know, eating healthy food because I am so up late night and मेरे dark circles आ गए हैं, whatever, ठीक है, and if the person doesn't respect it, offend हो जाता है, तो let them go. Okay, अगर वो आपकी केयर करता है, वो आपके बारे में भी हेल्दी सोचता है कि, यू नो, आई रिस्पेक्ट यू, एंड ऑफ कोर्स इफ दैट इज अफेक्टिंग यू सो मच, आई विल ऑल्सो ट्राई टू, यू नो, फाइंड सम अनदर टाइम जब हम बात कर सके. देन दोनों जब एक पाथ पे आते हैं, तब आप
एक रिलेशनशिप हेल्दी बनाते हो, ठीक है? तो दैट इज वाई आपको पहले नो बोलना पड़ेगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल हु लाइक टू प्लीज पीपल, ओके, बट यू हैव टू लूज दैट हैबिट बिकॉज दैट इज हैम्परिंग योर ओन ग्रोथ, ठीक है? जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे बाउंड्रीज, ऑफ कोर्स दैट्स गोइंग टू like kill you from inside, okay? And it's okay if you learn it, even when you're 40, even when you're 50, ठीक है? Because जब भी हम सीखते हैं, एक पर्सन का कोई भी टाइम नहीं होता सीखने का, राइट? हम कभी भी कोई भी न्यू चीज सीखते हैं, what matters is that we learned that and we applied it. Because sometimes people learn it so late but they don't apply it ever because they feel like they're helpless or they're victims or something, and they don't have any control on their lives. So it's very important that जब भी हम कोई चीज सीखे तो हम उसको अप्लाई करें. That's what matters. Exactly, बिल्कुल बहुत सही बात है. And boundaries are simply to be put in very easy, that something you cannot compromise with. Yeah. So like it can be simple boundary that I don't want you to cheat on me. That can be boundary. That's Yeah. very common boundary. Okay. Yeah. या boundary हो सकती है कि I don't want के हमारे जो कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं उनको हमारे बारे में या बहुत ज्यादा सीक्रेट्स पता है, या बाउंड्री कैन बी दैट माय सीक्रेट्स यू शुड टेल समबडी विदाउट मी नोइंग. या बाउंड्री हो सकती है कि यू आर टेलिंग सो मच अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, है ना? So that is, these are different kind of red flags also, but they should be coming in your boundary also. That boundary ऐसी भी हो सकती है कि यार मेरा करियर नहीं इफेक्ट होना चाहिए, okay? तो इसमें you said something, मैं इसी के बीच में से सवाल पूछना चाहता हूँ. You said that if the person is not respecting your boundaries, you have to let them go if they are offended. How to let go? Because that is the most difficult part. Okay, how to let go? Because you have held on to that person so strongly because you are emotionally invested. Okay? How to be that strong? Okay, stand up for yourself, because I think it takes another level of courage and strength to stand up for yourself. Okay, no, this you have broken my boundary, so let's keep space. Because मैंने, to be honest, mature breakup होते बहुत कम देखे हैं, बहुत कम, because breakups are very toxic. And it tells, I think breakup just have to be mature, you know. Huh? It doesn't have to be mature. नहीं, it doesn't have to be mature, but वो let go मेरे हिसाब से जितना ज्यादा easy और awareness के साथ होगा, ठीक है? वरना लोग let go करते हैं मजबूरी में. मजबूरी में let go होता है. It's not willingly. तो मैं चाहता हूँ कि वो willingly let go कैसे हो सकता है? The thing is कि जो भी चीज होती है उसको दो देखने के तरीके होते हैं. As you said, मजबूरी, and one is willingness. Okay, it's just like that you know that drugs are affecting you. Okay, और अल्कोहल ज्यादा पीने से आपको आपका लॉस हो रहा है, ठीक है? या फिर ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करने से आपकी हेल्थ खराब हो रही है. सो यू नो दैट उस पर्सन के साथ रहने की वजह से, या फिर वो क्योंकि आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो चीज भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करी है. नॉट फिजिकल हेल्थ बट योर मेंटल हेल्थ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर कि ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स क्या है. सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है आपकी मेंटल हेल्थ को या हैप्पीनेस मिल रही है, ठीक है? एंड इफ यू फील लाइक दैट योर बाउंड्रीज आर डिसरिस्पेक्टेड एंड आपको बहुत ही ज्यादा हर्ट फील हो रहा है, तो ये नंबर 1 स्टेप है टू लेट देम गो. तो पहली चीज जो है वो है रीजन आइडेंटिफाई करना, व्हाई आई नीड टू लेट देम गो. ओके, देन सेकंड इज दैट हर पर्सन के साथ कोई भी चीज को छोड़ना इज डिफिकल्ट. ओके, लोग हर चीज से अटैच हो जाते हैं. अटैचमेंट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? हम सोशल मीडिया से जैसे अटैच्ड है, ठीक है? अब दूसरों को तो यही लगता है कि बहुत आसान है यार, सोशल मीडिया एडिक्शन ही तो है, छोड़ दो. ठीक है, क्या तुम सिगरेट पीते रहते हो, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, छोड़ दो. वैसे ही लोग भी बोलते हैं कि व्हाई आर यू इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, जस्ट छोड़ दो. We know it's difficult, but we don't have any choice. We can just choose to live with it and let it kill us, or we should cut the cord and let ourselves breathe. थोड़े टाइम के लिए बहुत ज्यादा पेन होगा, but the best part is cutting the contact.
ओके, बिकॉज व्हेन यू आर इन द कांटेक्ट ऑफ दैट पर्सन, आपको स्टिल वो एनर्जी मिल रही है, उनकी नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, यू स्टिल स्टॉकिंग देम, और कभी कभी बात हो गई, वो स्टिल वो सारी मेमोरीज वापस आ जाती है। व्हेनेवर वी कट द कांटेक्ट, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें सिर्फ अच्छी मेमोरीज याद आती है, ठीक है, हमें लगता है कि ये भी अच्छा टाइम भी था, मुझे लगता है कि मुझे कोई मिलेगा नहीं इतना बेटर आगे जाकर, आई फील सो अलोन, ये अलोन होने की बहुत ज्यादा फीलिंग आती है। तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर डट के काम करना, एंड बार बार वो चीज, अपना रीजन ना कहीं लिख के रख लेना कि व्हाई डिड आई चोज दिस, sometimes we forget the why aspect, चाहे वो कोई भी चीज हो, whether it's our relationships, whether it's getting healthier, कोई भी चीज जब हम छोड़ते हैं तो Why हम why भूल जाते हैं। you always have to start with your why first. Yeah. तो इसमें एक और चीज आती है, लाइक अभी इस चीज के अराउंड आई थिंक बहुत टॉक्सिक कल्चर बिल्ड हुआ है, स्पेशली ड्यू टू बॉलीवुड एंड मूवीज, आई बिलीव, बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल, have you seen Kabir Singh? Yeah. I think that is classic example of what a toxic relationship is and what you are never supposed to get into. But उसको इस तरीके से ग्लैमराइज किया जाता है that one of the partner expects कि मैं जब भी कुछ गलती करूं सामने वाला मेरी मिन्नतें करने आए, if अगर कोई मिन्नतें नहीं करने आ रहा तो मतलब he or she doesn't love me. तो वो एक ग्लैमराइज हो चुका है गलत बिहेवियर, आई थिंक। तो उसको वो चीज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट योर पार्टनर इज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन पार्टनरशिप एंड इन रोमांटिक पार्टनरशिप people tend to believe कि ये खुद करें, they don't have conversation, and if they have conversation they feel small कि यार इसको बताना पड़ रहा है सब कुछ। एंड तो उस सारी चीज के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, बिकॉज आई फील कि इट इज वेरी वेरी टॉक्सिक कल्चर थोड़ा सा बिल्ड हो रहा है, स्पेशली अराउंड द रिलेशनशिप्स, and people don't understand the importance of it and effect it can bring on your mental health. And पहली चीज तो यही है कि वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स आल्सो। जब तक हम एक मेंटल हेल्थ की लाइक प्रॉपर स्पेस में नहीं होते ना, तो दोनों टाइप से, दोनों जगह से नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यू वर इन अ बैड मूड, ओके, एंड द अदर पर्सन वाज आल्सो इन अ बैड मूड। जब बात हुई तो वो क्लैश हो गया, कोई किसी की टोन थोड़ी ऊपर हो गई या किसी कोई इरिटेटेड था, वो दोनों चीजें क्लैश हो गई और उनसे लड़ाई और बढ़ गई। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमें खुद के ऊपर भी काम करना है, सो दैट we are in a space that we are able to listen without judgment. Sometimes we have so many like judgments attached with the other person, expectations कि अगर वो कोई भी मिस्टेक भी कर देता तो हमें लगता है कि oh my god, I like मुझे तो मूव ऑन हो जाना चाहिए, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए, राइट? बट पीपल, मतलब ये होता है कि पहले लोग कंक्लूजन और जजमेंट डिसाइड करते हैं, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस ढूंढते हैं। या एग्जैक्टली, तो वो चीज तो है ही, बट ये भी है कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो दैट एक पर्सन जो होता है रिलेशनशिप में वो ज्यादा कम्युनिकेट करता है, बट इफ द अदर पर्सन इज नॉट रेडी टू कम्युनिकेट, देन क्या करें? उस कल्चर की बात जो है वो यही है कि हर एक पर्सन को सीखना पड़ता है कि कैसे अपना रिलेशनशिप को बेटर करना है। इफ द अदर पर्सन इज नॉट पुटिंग दैट एफर्ट, वी कैन नॉट एक्चुअली चेंज दैट पर्सन, राइट? तो आई नो दैट बहुत ज्यादा ये कल्चर प्रमोट हो रहा है, एंड दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आपके अंदर इतनी नॉलेज है कि आप इन्फ्लुएंस हो गए या नहीं, because everybody saw that movie, but some people got influenced by that behavior because they had that concepts already, which actually strengthened that concept, right? But some people actually had different beliefs. They wanted that we have to respect the other person, we have to build a relationship where communication happens from both sides. There are people like that, okay, so we cannot change people. It's just like कि कुछ लोग हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, even if they are doing all sorts of wrong things, okay, because उनके अंदर भी वही फीलिंग्स हैं, वही बिलीव्स हैं जिनको वो चीजें पक्का बनाती जा रही है।
है ना. एंड दूसरी जगह है पीपल हु आर विद अ पार्टी जो कि सबको सपोर्ट करती है, यू नो, हु बिलीव्स इन सेक्युलरिज्म और एनीथिंग लाइक दैट. तो ऑफ कोर्स दोस पीपल विल ओनली फॉलो दैट थिंग. सो इट्स नेवर लाइक कि हम किसी ऐसे पर्सन को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते जिनके बिलीव्स उनके साथ मैच ना करते हो, right? Because there are people, like for example, there are men who hate women. Of course there are women who hate men. Okay, उनके सामने हम कोई भी एविडेंस रख लें कि दोनों इक्वल हैं या हर टाइप के लोग होते हैं, they won't believe it because उनके बिलीव्स ही ऐसे हैं, right? तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस और बिलीव्स ऐसे हैं, राइट. या सो पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर से और ज्यादा बिलीव्स वो पक्के हो जाते हैं, यू नो, एंड इट इज डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ दोस बिलीव्स. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट इन्फ्लुएंस एवरीबडी. इवन आवर ऑडियंस, वो हमारे साथ क्यों जुड़ी हुई है? बिकॉज दे हैव द सेम बिलीव्स एज अस. दे वांट टू बी बेटर, राइट? We cannot change those people who only like to watch a certain type of content, mainly entertainment. Most of the people like to watch entertaining stuff. They don't want to work on themselves, right? So तो we have to understand that whenever we are in a relationship, ऊपर ऊपर की लेयर से everyone sounds so perfect and vibes बहुत अच्छी आ रही होती है, but धीरे धीरे if it's really negative, then you have to understand that this person is not my person, and I need to align with a person who thinks and who has certain beliefs that are, you know, that match up to me. If there's a person who believes that जो भी हो रहा है होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर you know अगर रेप्स हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, होते रहते हैं, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू हैव द स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट नो, आई वांट टू स्टैंड अप फॉर समथिंग दैट्स मीनिंगफुल, आई वांट टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, ठीक है, तो वो दोनों बिलीफ क्लैश हो रहे हैं. सो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट like stay with that person for long, because आपके जो beliefs हैं वही आपकी एक personality बनाते हैं. You would not vibe with that person that much. Okay, so इसमें एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि just two more questions, okay? Yeah. The number one thing is, okay, I'll explain you in a way that a person who reads and spend times in library go in a club to find a partner. तो वो कोर वैल्यूज का डिफरेंस जो हो जाता है, स्टार्टिंग में केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, there's this butterfly, there's this honeymoon period in a relationship, but eventually वो कोर डिफरेंसेस बढ़ने लग जाते हैं टाइम के साथ, because if one person who wakes up early, दूसरा सोता ही बहुत लेट है, one person who goes to gym and दूसरा जाता ही नहीं है, ठीक है, और उसको लग रहा है कि यार तू इतना काम क्यों कर रहा है, तू इतनी डाइट क्यों फॉलो कर रहा है, तू ये क्यों वो कर रहा है, एंड इसी वजह से शायद डॉक्टर्स इसी वजह से मैरी डॉक्टर्स, CAs marry more of the CAs, engineers marry more of the engineers. So what is importance of your core values and how to look for them? Okay, so first of all we have to identify कि हमारी values क्या हैं, वो तो पता ही होनी चाहिए. Some people don't even know कि उनकी क्या values हैं, वो कुछ भी करते हैं, ठीक है, but the thing is that we like, ये तो वही बात होगी ना कि अगर एक person है जो fitness instructor है तो वो fitness instructor को ही ढूंढेगा because they can relate, but नहीं, ऐसा नहीं होता है, because life में we tend to get attracted to people who are more opposite than us, because we see something in them that also like जो हम में नहीं है. Yeah, I always say that toxic people are very attractive, like they are very attractive. I don't know what is in them, but they are always attractive. Like पता नहीं वो toxicity हम ढूंढते हैं कि we vibe more with it, but they are very attractive, and I don't understand why. Yeah, the thing is that धीरे धीरे, as you said, that one person wakes up early and one person you know वो रात को ही late सोता है, तो you have to come to a conclusion that the other person is getting inspired from you or he is getting defensive. Okay, if a person is getting inspired and he also wants to change because he knows that what they are doing is toxic, then your relationship will thrive. Okay, because you both are trying to work on yourself, even because हर एक person के अंदर toxic behaviors होते हैं, right? Nobody is perfect. तो अगर दूसरा person है जो आपको balance कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी quality है जो आपके अंदर अच्छी चीज लेके आ रही है, आपके अंदर कोई quality है जो उसको सुधार रही है, तो that will be a beautiful creation. But if the other person is only constantly criticizing you for doing better, then that person is actually toxic. If they are clapping for you and if they are also getting inspired that, you know what, even I want to wake up early, how do you do that? Okay, that would be something that will actually grow your relationship. But if there's a person that like
Why do you wake up so early? Don't you know कितना मजा आता है रात तक जागने में, नेटफ्लिक्स देखने में? तो that person would never change. Like तो उस person के साथ रहने का कोई फायदा नहीं. तो वही we have to identify कि core values जो हैं हमारी वो दूसरे पर्सन में प्रेजेंट है कि नहीं. हमें तो पता ही होती है. We know that there are people who know their core values and जिनको नहीं पता है they have to identify. Try some time spending on journaling and then you'll get to know that what are my core values. क्या है वो चीज जो मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ एंड कौन सी ऐसी चीज है जो मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता. So then you have it. और ये अपना बिहेवियर स्पॉट करना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है, बिकॉज otherwise you'll end up in situations and end up with the people where and with whom you don't want to be. और मैंने ये क्यों एक्सपीरियंस किया, and there's this mindset people have, ठीक है, जैसे हम कभी कभी अपने फ्रेंड्स को वार्न करते हैं कि दिस पार्टनर इज नॉट गुड फॉर यू, you guys may have a lot of chemistry but there's no compatibility, and they are like कि मैं उसको चेंज कर दूंगा. Yeah. And I've heard this, I've learned this lesson in a very hard way, and that is you can never change a person. You can never. Matlab, you can inspire them to change. You can support them while they are changing. You can give them all of the knowledge they need to change, but you can never change anyone. We know how difficult it is to change our own mindset. जितना भी जो भी इंसान है, I think this is the most common mistake that people do. कि I will change him, I will change her. ठीक है, जब वो मेरे साथ रहेगी I will change her. You can never change the person, never. You can just inspire them to change. या तो वो चेंज नहीं होंगे या वो तुम्हें टॉक्सिक बना के तुम्हें चेंज कर देंगे वो. तो ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है. And so this is something people have to understand. Never drop against all odds. You can never knock me.